باغ عدن میں آدم اور ہوا کے ساتھ آ کر بات چیت کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، خدا بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ آسمان پر اور زمین پر کوئی بھی مخلوق خدا کی مانند نہیں تھی۔ محض انسان آدم ایسی مخلوق تھا جس کو خدا نے کس کی شبیہ پر بنایا تھا؟ اپنی شبیہ اور صورت آدم کو بخشی تھی۔ خدا نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا، اور جب باغ عدن میں خدا آتا تو اپنی صورت کو دیکھ کر خدا نہایت خوش ہوتا تھا۔ اس کو خوشی اور خرمی ہوتی کہ آج میں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ ہاللویا۔ لیکن گناہ کی وجہ سے جب گناہ انسان کی زندگی میں آیا تو خدا کا بیٹا، بائبل مقدس آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ خدا کا بیٹا جو آدم ہے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ خدا کے اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ اور کیا خدا اپنے بیٹے آدم کو باغ عدن سے نکال کر خوش تھا؟ خدا رنجیدہ تھا، خدا ملول ہوا، خدا غم زدہ ہو گیا، خدا پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے گھر سے چلا گیا ہے، مجھ سے جدا ہو گیا ہے، مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ خدا نے بڑی کوشش کی کہ اس کا بیٹا پھر سے باغ عدن میں واپس آ جائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا ناراض ہو کر چلا جائے، کتنی دیر آپ برداشت کریں گے اس کے ملازم کیا ہے؟ کتنی دیر برداشت کر سکتے؟ میرا خیال ہے آپ سوچیں کہ شام ہونے سے پہلے میرا بیٹا میرے گھر میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے میں بہت زیادہ دکھ اٹھاؤں، کسی اور شہر میں نہ چلا جائے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے وہ دور نہ ہو جائے۔ ہم پریشان رہیں گے، غم زدہ رہیں گے، روتے رہیں گے جب تک ہمارا بیٹا ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ خدا بھی ایسے پریشان تھا۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا نے آدم کو باغ عدن میں سے نکال تو دیا، لیکن خدا پریشان ہو گیا۔ خدا نبیوں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا کہ کوئی میرے بیٹے کو باغ عدن میں میری حضوری میں واپس لے آئے، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس زمین پر آئے غور سے سنیے گا اس بات کو، جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر آئے سب کے بارے میں بائبل مقدس صاف اور واضح بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن جب تیرا اور میرا منجی خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آتا ہے تو اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تو لکھا کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس پر انگلی اٹھا سکی۔ اس کی پیدائش بھی بغیر گناہ کے ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ جب کوئی بھی خدا کے بیٹے آدم کو اس کی حضوری میں واپس نہ لا سکا تو خدا نے مجسم ہو کر آپ زمین پر انسان کے ساتھ آ کر صلح کی، اور خدا ہماری خاطر ذلیل و خوار ہوا۔ اس نے صرف موت نہیں
बल्कि लिखा है लानती मौत, सलीबी मौत बर्दाश्त की। और खुदावंद यीशु मसीह के जान देने से हम सब खुदा की रफाकत में फिर से बहाल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा फिर अपने लोगों से वैसे ही रफाकत रखता है जैसे बागे अदन में रखता था। जब हम पुराने अहदनामे का शरीयत का मुताला करते हैं तो सिर्फ खास लोगों को इजाजत थी, सिर्फ काहिनों को इजाजत थी कि वो हैकल मुकद्दस में जाएं और कुर्बानियां और नज़रें खुदा के हुजूर में पेश करें। और बताया जाता था, कहा जाता था कि जो पर्दा है हैकल का, उसके पीछे खुदा की हजूरी है, खुदा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, खुदा यीशु मसीह जब मुआ, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, दो हिस्सों में बट गया। इसका मतलब ये है कि खुदा जो इंसान से दूर हो गया था, खुदा जो इंसान के गुनाहों के सबब से हमारे साथ बातचीत नहीं करता था, हमारे साथ रफाकत नहीं रखता था, अब जब उसके पाक बेटे बर्दे खुदावंद यीशु मसीह का लहू बह गया है, तो वो खुदा हमारे साथ फिर से मेल मिलाप रखना शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज हम में से हर एक का इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक इंसान से खुदा पर्सनल तौर पर बड़ी मोहब्बत रखता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा एक स्टोरी बाइबल मुकद्दस में से, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका हम देखेंगे 15वां बाब बाइबल मुकद्दस में से, लूका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल बता उन्हें बांट दिया। इधर मेरी तरफ देखिए, सुनिए खुदा। लिखा है कि किसी आदमी के कितने बेटे थे? 2 थे, और उनमें से जो छोटा था उसने कहा कि ऐ बाप, तेरी मीरास का जो हिस्सा मुझको बनता है मुझको दे दे। बाप के मरने के बाद मीरास किसको मिलती है? बेटे को, औलाद को मिलती है। दूसरे लफ्जों में ये जो लड़का है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मेरा जो हिस्सा बनता है अभी मुझको दे दे। ऐसा लोग करते हैं दुनिया में, और रूहानी तौर पर भी ऐसा होता है। रूहानी फर्जंद भी बाज़ औक़ात ऐसा ही करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੇ ਚਰਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰੋਸਾ ਚਰਚ, ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਲਾ ਬਣਾ। ਬੜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਏਗਾ। हमें ऐसा नहीं करना है। जीते जी अपने बाप की मिरास पर कब्जा नहीं करना। सीखेंगे, उस बेटे ने कहा कि मेरा हिस्सा जो बनता है मुझको दे दे। और आगे लिखा है, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके
दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। सारा माल, जिन्नी मालो दौलत को इकट्ठा करके रख दिया सी, बुरे कमां दे विच सारी दौलत जाया कर दी। जब उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बदचलनी में उसने बर्बाद कर दिया, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उस मुल्क में काल पड़ा और वो निहायत गरीब हो गया उस शख्स में, उस मुल्क में। और आगे लिखा, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। सुअर चराने की नौकरी इसको करना पड़ी और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। खुराक की बागी जानवरों वाली, सुअर जो फलियां खाते थे उन्हीं से अगर दरकार हो जाती तो ये खा लेता, वरना भूखा वहां पर मर रहा था। लेकिन क्या हुआ? ये बहुत खूबसूरत बात है। लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर दे। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। खुशी की बात ये है कि उस मुल्क में जाकर इसको होश आई है। बहुत से लोग मुसीबतों में फंसते हैं, खुदा से दूरी के सबब से मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें उनकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन वो खुदा से और ही ज्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि इसको होश आया और इसने वापस जाने का सोचा। लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को उस पर तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। इस बेटे ने जब वापस बाप के पास जाने का सोचा और अपने गुनाह का इकरार किया और बाप से जाकर कहता है, क्या बाप, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, तू मुझको माफ कर दे और अपने नौकरों की तरह मुझको घर में रख दे। लेकिन उसका बाप कहता है कि तू तब भी मेरा बेटा था, तू मर गया था और आज जिंदा हुआ है। हालेलुया। और उसने अपने नौकरों से कहा कि आओ हम क्या करें, खुशी करें। सबसे बड़ा मौजज़ा क्या होता है, बता सकते हैं? सबसे बड़ा मौजज़ा आप जो बता सकते हैं? यस, सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं है कि कोई लंगड़ा चल पड़े, और ना ही सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए तो फिर उसको मौत आती है, जैसे लाजर को भी आई। और मुर्दा जिंदा होने से आसमान पर खुशी नहीं होती, सिर्फ एक ही वक्त में आसमान पर खुशी होती है, जब कोई भी गुनहगार जमीन पर तौबा करके
अपनी जिंदगी खुदावंद को देता है। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि आओ, मेरा बेटा मेरी हजूरी में आया है, अपने गुनाहों का उसने इकरार किया है, आओ हम क्या करें, खुशी मनाएं। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है जब कोई जिंदगी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे देती है। हालेलुया। यहाँ पर हमको बाप की शफकत और मोहब्बत नजर आती है। उसके गुनाहों के बावजूद भी खुदा ने, यहाँ पर जो बाप जाहिर किया गया है ना, वो खुदा को जाहिर किया गया है। उस बाप ने यानी खुदा ने हमारे गुनाहों के बावजूद हमको गले लगाया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए, जब मत्ती रसूल के घर में खुदावंद यीशु मसीह थे, तो शरीयत के जो आलम थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा उस्ताद गुनहगारों के साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि गुनहगारों को। यीशु मसीह गुनहगारों को सीने लगाने के लिए आया है ताकि वो अपने गुनाहों को तर्क करके खुदावंद की हजूरी में आ जाए। हालेलुया। और जब कोई गुनहगार खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, बाप उसको ऐसे हासिल करता है जैसे उसने खजाना हासिल कर लिया है। हालेलुया। खुदा इतना खुश होता है कि जैसे उसको कोई खजाना मिल गया है और वो अपने लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाता है। हमारे गुनाह चाहे कितने भी हों, खुदा हमेशा इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा, मेरी बेटी कब मेरे पास आएगी। आइए आज अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें कि मैं कैसे जिंदगी बसर कर रहा हूं। क्या मेरी जिंदगी वाकया ही खुदा के कलाम के मुताबिक गुजर रही है? यीशु मसीह ने कहा, दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। हमारा किरदार, हमारा रवैया हमारी पाकीज़गी को साबित करता है। जब हम बोलते हैं तो पता चलता है कि ये बहन कितनी रूहानी है। कुछ लोग सिर्फ चर्च में रूहानी होते हैं। आप अपने घर में भी वैसे ही हैं जैसे आप चर्च में हैं। जब कोई भी बेटी अपने घर में अपनी वालदा से गुफ्तगू करती है, तब उसके रूहानीपन का पता चलता है कि ये कितनी रूहानी बेटी है। चर्च में हम बाज़ों का बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे होते हैं, बहुत खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर वालों के साथ ही हमारा रवैया ठीक नहीं होता। आइए आज अपने आप को परखें, सोचें कि मैं कहीं कोई किसी ऐसे गुनाह में तो नहीं फंसा हुआ जिसकी वजह से मैं खुदा की बादशाही से दूर हो गया। आए हम सब जिंदा खुदा के हुजूर में अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे, खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। 1 मिनट के लिए हम सब खामोश रहेंगे और हर एक अपनी जिंदगी पर गौर करेगा और हम सोचेंगे कि कहीं मैं भी इस खोए हुए बेटे की तरह तो नहीं, कहीं मैंने भी अपने बाप यानी खुदा को दुख तो नहीं दिया। हम इंसान होते हुए बार बार खता करते हैं, लेकिन हमारा एक मददगार खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर मौजूद है जो बाप के हुजूर में हमारी शिकायत करता है। हम जितने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं वो अपना हाथ खुदावंद खुदा के हुजूर में बुलंद करें। हम सब के लिए दुआ की जाएगी।
Thanks Lord Jesus Christ. Hallelujah. खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम और कादिर मुतलक खुदा है। तू रब्बुल अफवाज है। और जिन्होंने खुदा अपने हाथ को बुलंद किया है, ये किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने है खुदा। और तू ही है जो हम सब के गुनाहों के लिए हुआ है। और तू आज भी हमारा इंतजार करता है कि हम तेरे हजूर में आ जाएं। जितनी जिंदगियां खुदा तेरे हजूर में आ जाएंगे, तो इनके गुनाहों को बख्शना, क्योंकि तेरा कलाम है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उन्हें तर्क करता है उस पर रहमत होगी। तेरी रहमत, तेरा फजल इन जिंदगियों पर हो खुदा। इन बैठी हुई जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये जिंदगियां तेरी खिदमत करने वाली बन जाए, और ये चर्च जलाल वाली कलीसिया बने जिसको तो लेने के लिए आ रहा है। तो हम सब के गुनाहों को माफ कर और अपने हजूर में कबूल कर, और हम तेरी उस रफाकत में आ जाए जैसे हम आगे में रफाकत रखते थे। यीशु मसीह की अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पेश करें। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज लगता है या गरीब लगता है? अजीज लगता है। अजीज का मतलब क्या होता है? अजीज का मतलब होता है जो बहुत करीब हो, रिश्तेदार। साडा कोई रिश्तेदार होए ते कोई पूछे ते सी कि हां साडे अजीज रिश्तेदार, यानी वो खुदा के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, जो खुदावंद को देते हैं। आज खुशी के साथ अपना गीत गाएंगे, और अंकल हमारे दरमियान हैं, वो गीत में हमारी रहनुमाई करेंगे, उनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और गीत गाएंगे, और इसी के दौरान ही अपने हदिया जात खुदावंद को लाएंगे।